Very good morning, 10th class. It's cool morning also today as it rained last night. So we have a nice weather today. And this is the perfect one to study and to concentrate on lesson. So coming to our lesson, we have started the third unit, that is the age of revolutions that was going on in France. 3 countries already changes took place in France, in Belgium and in Greece. Then we have read about a very important revolution or a movement that took place, that was Romanticism, where importance was given to feelings, emotion, love for your nation over science and logic. And we also knew about the importance of language in spreading nationalism, with the example of Poland, how with local language the people can get a better message. So importance of vernaculars we have read yesterday. That was our yesterday's lesson. The topic that we are going to start today is hunger, hardship and popular revolt. Now we'll see what does these 3 words mean: hunger, hardship and popular revolt. See, changes were taking place in Europe, and here we are going to read about the decade of 1830s. वो revolution start हो गए थे, people were against monarchy, and the year 1830 decade of 1830s was a very difficult decade for the people of Europe. So that is, they have to face hunger, hardship मतलब बहुत मुश्किल का समय था, भूख से लोग मर रहे थे, there was starvation, hardships they have to face, no work to do, no food to eat. This was the condition of people of Europe. And all these things led to popular revolt. Popular revolt का मतलब जब लोग रिवोल्ट करते हैं, विद्रोह करते हैं अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ, that is known as popular revolt. So let's see what happened in Europe in the decade of 1830s. The 1830s were years of great economic hardship in Europe. ये जो 10 साल का समय था, ये बहुत मुश्किलों का समय था यूरोप के लोगों के लिए. The first half of the 19th century saw an enormous increase in population all over Europe. This is the first half of 19th century from 1800 to 1850. So this was the time period when the population of Europe rose very high. बहुत तेज़ी से population बढ़ी. और पॉपुलेशन जब इंक्रीज होती है बच्चों, इट्स नॉट ओनली दैट द नंबर ऑफ पीपल इज इंक्रीजिंग, बट अलॉन्ग विद दिस इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पीपल यू नीड फूड फॉर देम, क्लोथ्स फॉर देम, जॉब्स फॉर देम, एवरीथिंग इज नीडेड. सिर्फ नंबर नहीं बढ़ रहा है लोगों का, और भी बहुत सारी चीज़ें उसी स्पीड से बढ़ानी पड़ती है. देन द पॉपुलेशन फील सेटिस्फाइड. बट वॉट इज़ हैपनिंग हियर इन यूरोप? नंबर ऑफ पीपल तो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, बट वॉट अबाउट द रेस्ट? वो सब उतनी तेज़ी से स्पीड अप नहीं हो रहा है. इन मोस्ट कंट्रीज देयर वर मोर सीकर्स ऑफ जॉब देन एम्प्लॉयमेंट. और द फर्स्ट थिंग दैट पीपल फेस इज़ अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ रही है लेकिन जॉब्स उसी स्पीड से नहीं बढ़ रहे हैं. तो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन यूरोप, there were a large number of unemployed people who wanted job. And when a person is unemployed, वो अपनी basic necessities को पूरा नहीं कर सकता. So this is hunger and hardship. Population from rural areas migrated to the cities to live in overcrowded slums. When there are no jobs in rural areas, people migrate to अर्बन एरियाज, है ना. ये तो बहुत पुराना सिस्टम है कि लोग काम की तलाश में सिटीज़ की तरफ जाते हैं. सेम थिंग हैपेंड देयर ऑल्सो. When there were no jobs, no work left in rural areas, people started migrating to
सिटीज़. अब सिटीज़ में उनके लिए फैसिलिटीज़ थोड़ी ना है. सो दे डेवलप्ड स्लम एरिया, झुग्गी झोंपड़ी जिसे हम कहते हैं, चौल एरिया, वो स्लम्स डेवलप हुए. अब कच्चे पक्के मकान बनाकर रह तो रहे हैं लेकिन उनमें फैसिलिटीज़ नहीं हैं. सो स्लम्स डेवलप्ड देयर. Small producers in towns were often faced with stiff competition from imports of cheap machine-made goods from England, where industrialization was more advanced than on the continent. See, so many problems. That's why this decade is known as of hardship. एक तरफ क्या हो रहा है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, उसी स्पीड से जॉब्स नहीं हैं. पीपल स्टार्टेड माइग्रेटिंग फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज. उन्हें काम चाहिए. अब ह्यूमन बीइंग नीड्स वर्क, ये तो हम समझते हैं, लेकिन क्या हो गया उसी समय, दिस वॉज द टाइम ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. व्हाट इज़ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन? जो चीज़ें अभी तक हाथ से बनती थी अब वो किससे बनने लगी, मशीन से बनने लगी. और ये तो आप समझते ही हो कि हाथ से कम चीज़ें बनती है और मशीन से ज़्यादा चीज़ें, एक सी बहुत सारी चीज़ प्रोड्यूस हो सकती है ना मशीन से. सो दिस वॉज हैपनिंग एट दैट टाइम. इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ. दे स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग गुड्स ऑन मशीन्स एंड मशीन मेड गुड्स आर चीपर, सस्ते होते हैं. इंग्लैंड में मशीन मेड गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, बट इन रेस्ट ऑफ द यूरोप, बाकी जितना भी यूरोप है, दूसरे कंट्रीज़ हैं, वहाँ अभी भी हाथ से चीज़ें बनाई जा रही हैं. एंड इफ़ यू कंपेयर द रेट्स ऑफ बोथ द थिंग्स, एक तरफ मशीन मेड गुड है, एक तरफ हाथ से बना हुआ है, कौन सा महंगा होगा? समझते हो ना, क्या महंगा होगा? हाथ से बना हुआ. और इंग्लैंड से क्या आ रहा है? मशीन मेड गुड्स आ रहे हैं. तो जो चीज़ें हाथ से प्रोड्यूस की जा रही हैं वो मार्केट में सेल नहीं हो रही हैं. तो स्मॉल प्रोड्यूसर्स के सामने प्रॉब्लम आ गई, बिकॉज दे कुड नॉट सेल देयर गुड्स, क्योंकि उन्हें कंपटीशन क्या दे रहा है? दोज मशीन मेड गुड्स विच वर कमिंग फ्रॉम इंग्लैंड. इंग्लैंड में चीज़ें मशीन से प्रोड्यूस हो रही है, रेस्ट ऑफ द यूरोप दे आर स्टिल प्रोड्यूस्ड बाय हैंड्स. तो इंग्लैंड के गुड्स ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं क्योंकि वो सस्ते हैं, तो प्रोड्यूसर्स को मुश्किल हो रही है. एंड दिस वॉज स्पेशली सो इन टेक्सटाइल, और ये सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुआ टेक्सटाइल प्रोडक्शन. क्लॉथ, हाथ से क्लॉथ महंगा होता है बना हुआ, और जो मशीन से क्लॉथ आता है वो सस्ता होता है. एंड आफ्टर फूड द नेक्स्ट बेसिक नेसेसिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग इज़ क्लॉथ. तो फूड तो ठीक है, हाथ से ही प्रोड्यूस होगा क्योंकि खेत पर उगाना पड़ेगा, उसमें भी मशीन्स आएंगी, हम बाद में समझेंगे. लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री अफेक्ट हुई दैट वाज टेक्सटाइल. इंग्लैंड से मिल मेड क्लॉथ आ रहा है, जबकि रेस्ट ऑफ द यूरोप द पीपल आर प्रोड्यूसिंग क्लॉथ विद हैंड्स. इंग्लैंड का क्लॉथ सस्ता है, बाकी का क्लॉथ महंगा है. which was carried out mainly in homes or small workshops and was only partly mechanized. इंग्लैंड में complete mechanization हो गया. The complete cloth was made on machines. In rest of the Europe, only basic machines are being used. या हम कह सकते हैं instruments are being used. The cloth is still produced by hand. करघा जिसे कहते हैं ना, उस पर अभी भी produce हो रहा है. तो machine made cloth is cheap, handmade cloth is costly. In those regions of Europe where the aristocracy still enjoyed power, अभी भी कुछ एरियाज, कुछ कंट्रीज ऐसे हैं where rich class is dominant. Peasants struggled under the burden of feudal dues and obligations. उन्होंने अभी भी अपने peasants को दबा के रखा हुआ है, फार्मर्स को. लैंडलॉर्ड्स एक्सप्लॉइट कर रहे हैं अपने फार्मर्स को, खूब मेहनत करवाते हैं उनसे, खेतों में प्रोडक्शन करवाते हैं, लेकिन बदले में कुछ नहीं दे रहे हैं. तो पीजेंट्स परेशान हैं. टेक्सटाइल इंडस्ट्री के वर्कर्स जो बना रहे हैं, वीवर्स एंड ऑल, वो भी परेशान हैं. द राइज ऑफ फूड प्राइजेस और अ ईयर ऑफ बैड हार्वेस्ट. बाय चांस अगर ऐसा हो जाता किसी वजह से बैड हार्वेस्ट, व्हाट इज़ बैड हार्वेस्ट? किसी साल क्रॉप्स खराब हो जाते या फूड की शॉर्टेज हो जाती, तो इट वॉज वेरी प्रॉब्लमेटिक फॉर द पीपल ऑफ यूरोप. लेड टू वाइड स्प्रेड पॉपुलिज्म इन टाउन एंड कंट्री. लोग स्टावेशन की कंडीशन में आ जाते थे. दिस वॉज कंडीशन क्योंकि इंग्लैंड में या यूरोप में देर इज़ ओनली वन हार्वेस्ट सीजन. एक क्रॉपिंग सीजन होता है वहाँ पर, क्योंकि विंटर्स में दे डोंट ग्रो क्रॉप्स बिकॉज ऑफ स्नोफॉल. तो अगर एक साल क्रॉप खराब हो गया
तो फिर क्रॉप कब होगा? नेक्स्ट ईयर। लेकिन जो इतनी तेज़ी से पॉपुलेशन बढ़ रही है, इट रिक्वायर्स फूड। वो तो एक साल वेट नहीं करे कि चलो इस साल क्रॉप खराब हो गया, अगले साल खाना खाएंगे। फूड इज़ रिक्वायर्ड बाय एवरीवन एवरी डे। तो अगर एक साल भी किसी वजह से फूड प्रॉब्लम हो जाती थी, देन देयर वॉज अ कंडीशन ऑफ स्टारवेशन, भूखे मरने की नौबत आ जाती थी। The year 1848 was one such year. Again we are going to read about France. और ऐसा ही एक और साल था, the year 1848. See now, again change will take place. France में already 2 changes हो चुके हैं. The first one was in 1789 when French Revolution took place. Second one in 1830 where monarchy was removed and constitutional monarchy under Louis Philippe was established. July Revolution है ना, दोनों जुलाई में हुए थे. Now third change, so listen carefully. Such thing happened in the year 1848. Food shortage, खाने की कमी हो गई, and widespread unemployment. दोनों condition है फ्रांस में. Food shortages are also there और widespread unemployment brought the population of Paris out on the roads. लोग इतने परेशान हो गए. It was continuing since 1830s. जो कंडीशन बिगड़नी शुरू हुई फ्रांस में, है ना, लोगों के पास जॉब नहीं है, खाने की कमी है, अब जॉब नहीं है तो पैसे नहीं है, खाना कैसे खरीदेंगे. So same thing happened in France. So the people, the population of Paris, they revolted. भूखे मरेंगे तो क्या करेंगे? अब विद्रोह में बाहर सड़कों पर आ गए. बैरिकेड्स वर इरेक्टेड. गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरे मेजर्स करती है, तो गवर्नमेंट ने क्या किए? बैरिकेड्स लगा दिए ताकि लोग आगे ना बढ़ पाएँ. एंड हु वॉज द रूलर ऑफ फ्रांस एट दैट टाइम? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क लुई फिलिप. सो ही वॉज फोर्स्ड टू फ्ली. इतना प्रेशर आया लोगों का दैट लुई फिलिप हैड टू लीव हिज कंट्री. उसे अपना देश छोड़कर भागना पड़ा, नहीं तो हो सकता था पीपल माइट हैव किल्ड हिम. सो ही हैड टू रन अवे. तो अगर राजा ही देश छोड़कर भाग जाएगा तो इमेजिन द कंडीशन ऑफ द पीपल. As France had constitutional monarchy, king was just the nominal head. Actual administration was carried out by National Assembly. तो जब राजा ही देश छोड़कर भाग गया तो द नेशनल असेंबली डिक्लेयर्ड फ्रांस अ रिपब्लिक. तो अब जब देयर इज नो किंग, नो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क, what will be the next step for the country? That it was declared a republic. So France became republic in 1848. Granted suffrage. What is suffrage, children? Right to vote. So granted suffrage to all adult males above 21. So see, again एक republic, democratic government is being set up in France. क्या हुआ? When 1848 the king fled from the country, जो पार्लियामेंट है, नेशनल असेंबली है, इट डिक्लेयर्ड फ्रांस अ रिपब्लिक. व्हाट इज रिपब्लिक? द हेड ऑफ द कंट्री इज इलेक्टेड बाय द पीपल. सो फ्रांस वॉज डिक्लेयर्ड एज अ रिपब्लिक. राइट टू वोट, सफरेज, राइट टू वोट was given to all adult males above 21. See, women को अभी भी right to vote नहीं मिला है. सिर्फ किसको दिया गया? मेल्स को. हमने लिबरलिज्म जब हम पॉलिटिकल फील्ड में पढ़ रहे थे तब हमने समझा था क्यों लड़ाई थी ये, बिकॉज विमेन वर नॉट गिवन राइट टू वोट. स्टिल विमेन आर नॉट गिवन राइट टू वोट. राइट टू वोट सिर्फ किसे दिया गया? ऑल अडल्ट मेल्स अबव 21 एंड गारंटीड द राइट टू वर्क. ये एक बहुत बड़ा स्टेप था. एवरी पर्सन वॉज गिवन राइट टू वर्क. इट मीन्स दैट it is the responsibility of the government now to provide work to every person who wants to do work. सबसे ज़्यादा unemployment ही तो था फ्रांस में, and because of that unemployment people revolted. So अब गवर्नमेंट, जो भी उस समय नई गवर्नमेंट बनी रिपब्लिक बनने के बाद, it gave right to work to the people. That now it's the responsibility of the government to give work to every person. इससे ये रिवोल्ट ख़त्म हुआ. National workshops. Everywhere in France, workshops were open to provide employment. They were set up all over the
कंट्री, पूरे कंट्री में वर्कशॉप्स लगाई गई वे पीपल कुड एनरोल देमसेल्व्स, और जो उनकी कैपेबिलिटी या स्किल्स होते थे उस हिसाब से उन्हें वर्क दिया जाता था. तो दिस इज हंगर हार्डशिप विच लेड टू पॉपुलर रिवोल्ट, है ना. ये बहुत इंपॉर्टेंट 1830s वाला जो पैरा है बच्चों, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है जनरली बोर्ड में. सो रीड इट केयरफुली एंड मेक योर नोट्स. नेक्स्ट वील स्टार्ट अनदर रेवोल्यूशन, एक हम पढ़ेंगे बाय वीवर्स, दैट वील स्टार्ट इन आ नेक्स्ट क्लास. एंड टिल देन कीप रीडिंग एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल.